Hello everyone, I hope you all are doing great. In this video we'll discuss sound waves, nothing like you studied, not a Doppler effect, not organ pipe or anything like that. But we rather will dive into the fundamentals of the sound waves, right? So what happens when the wave passes? What are the pressure oscillations? What are the volume oscillations? How the temperature is varied when the sound wave passes through a particular medium, right? So that's what we are going to do in this video, but with the help of a question, right? I'm not going to do a lecture, of course. There will be a question. There is a question is from International Physics Olympiad from on thermoacoustic engines, right? So I hope you know the basics, at least you have read the chapter on sound waves, right? So what are sound waves, longitudinal waves, transverse wave? I hope you know these things because I'm not going to explain in this video because video will be too lengthy if I explain everything, right? So this is the basically I'll solve a problem, International Physics Olympiad problem that is very beautifully designed. The problem, while answering to the questions in the problem, you'll get to know a lot about the basics of the sound waves. Why there is a pressure term, why it is called a pressure wave or displacement wave, how actually the pressure varies, how the wave travels and what it causes to the density of the air column, right? So these kind of things we'll dive into by answering the questions we'll learn, right? So I have put the link of the question in the description, so please read it first and then watch the video, right? I'll also attach the question to the video. Please pause and read. So introduction about thermoacoustic engines, I leave up to you to read. So let's get on to the question. The question is sound wave in a closed tube, right? Consider a thermally insulating tube of length L and cross-sectional area S whose axis lies along the X direction. The two ends of the tube are located at X is equal to 0 and X is equal to L. So this is a tube. There is an ideal gas filled in the tube which has a pressure P naught, T naught and mass density rho naught in the undisturbed state, right? So what happens is in the question 1, A.1, when a standing sound wave forms, right? The standing wave is, I hope you know what is standing wave. Standing wave is basically, traveling wave is different and standing wave is different. You please Google it because it will take a lot of time to explain all these kind of things. So standing wave forms and gas elements oscillate in the X direction, right? There is a, when the pressure wave is formed or the sound wave, right? What happens is, it is a longitudinal wave. Longitudinal wave means कि जो एयर एलिमेंट है, राइट? मान लो एक पार्टिकल है, पार्टिकल्स क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, राइट? वाइब्रेट in the horizontal direction if the propagation of wave is in horizontal direction. So in longitudinal wave, vibration of the particles is in the same direction as the propagation of the wave. Transverse wave में उल्टा होता है. उल्टा मतलब क्या होता है कि perpendicular होते हैं उनकी vibration as perpendicular to the propagation of the wave. वो transverse में होता है, longitudinal में this is the case. Fine. So they have given कि longitudinal displacement of each gas element from its equilibrium position is u of xt. अब longitudinal displacement दिया है यहाँ पे, right? A sin kx cos omega t, right? So this is the longitudinal displacement. Suppose let's take an example. Fine. Before moving on to the question, मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट है, right? ये 3D, राइट? ट्यूब है ये, इसलिए मैंने ऐसा ड्रॉ किया. फाइन. तो ये एलिमेंट मान लो यहाँ x पॉइंट है ये और ये x प्लस डेल्टा x है, राइट? सो इसका वॉल्यूम क्या होगा इस एलिमेंट का वॉल्यूम होगा v नॉट s डेल्टा x, राइट? अब दिया भी है, राइट? s इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. S is a cross-sectional area.
फाइन, क्रॉस सेक्शनल एरिया है एस, तो वी नॉट एस डेल्टा एक्स इसका वॉल्यूम हो जाएगा, फाइन. बट व्हाट हैपन्स अगर वेव पास कर रही है इसमें से, राइट, द स्टैंडिंग वेव फॉर्म्स, व्हाट हैपन्स इज दिस पार्ट हियर गेट्स शिफ्टेड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी इसकी, वो यू कैन मान लो ये हो गई, इसकी लेंथ मान लो ए है अगर, राइट, ए, डिस्प्लेसमेंट इज ए, और इसकी क्या हो जाएगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ये यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स है, यहाँ पे x लिख देता हूँ, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ यहाँ कुछ हो जाएगी ऐसी, राइट. सो आई कैन से दिस इज a प्लस डेल्टा ए, राइट, this is a plus delta a, this displacement is a, right. पोजीशन इसकी x थी पहले, right, x थी, x से a डिस्प्लेसमेंट हुआ, और यहां पे x प्लस डेल्टा एक्स पोजिशन थी, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ a प्लस डेल्टा ए, राइट. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. अब ऐसा क्यों है, क्योंकि आप साउंड वेव्स अगर पढ़ोगे, एच.सी. वर्मा में है, एच.सी. वर्मा में साउंड वेव्स का दिया है, बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन है, द एक्सप्लेनेशन इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, दिया है वहाँ पे सब कुछ. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट. क्या होता है कि जैसे आप वाइब्रेटिंग सोर्स लाते हैं, राइट, वाइब्रेटिंग सोर्स से क्या होता है कि एक्सेस प्रेशर जनरेट होता है, क्योंकि डेंसिटी कम हो जाती है उस पार्ट की, जो अगर ये वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन में क्या हो जाएगा कि अगर इस तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट में क्या होता है कि जो लोकली जो एयर कॉलम है, राइट, यहाँ पे जो भी फ्लूइड है, अगर मान लो एयर है अपनी, तो वो कंप्रेस हो जाती है, फाइन, मोमेंटरीली फॉर स्मॉल टाइम. देन व्हाट हैपन्स इज कि उसके अगला वाला फिर पोर्शन कंप्रेस हो जाएगा, फिर उसके अगला वाला, फिर उसके अगला वाला, ऐसे करके प्रोपेगेट हो जाता है. लेकिन अगर ये फॉरवर्ड का फिर बैकवर्ड मूवमेंट हो जाएगी ना इसकी, फिर क्या हो जाता है, इसका डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि एयर कॉलम बढ़ जाता है वॉल्यूम उसका, तो प्रेशर कम हो जाता है, राइट. सो दैट इज द केस. दैट्स हाउ सिंपल हार्मोनिक मोशन में, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऐसे वेव ट्रैवल करती है, फाइन. आई मीन पार्टिकल्स सिंपल हार्मोनिक फैशन में, आई डोंट मीन टू से सिंपल हार्मोनिक कंप्लीटली, लेकिन उस फैशन में पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, और वैसे टाइप एनर्जी फ्लो होती है, राइट. साउंड वेव एनर्जी, फाइन. तो एक्सेस प्रेशर होता है कुछ, राइट, एक्सेस प्रेशर, यहाँ पे कुछ अलग प्रेशर है पहले, अगर मैं, तो ये जो इक्वेशन है ना, u ऑफ एक्स टी, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन है, कितना डिस्प्लेस हुआ, मान लो x डिस्टेंस पे दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट. सो आई कैन राइट दिस एज a राइट हियर इज इक्वल टू a. अगर x प्लस डेल्टा एक्स पे, तो मुझे निकालना पड़ेगा क्या होगा वो, फाइन. तो हम अगर ऐसा निकाले u ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स ऑफ t, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a साइन के x प्लस डेल्टा एक्स t कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट. x प्लस डेल्टा एक्स पोजिशन से a प्लस डेल्टा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सो दिस इज a प्लस डेल्टा बेसिकली, ये a प्लस डेल्टा है. लेकिन ये नहीं बोलूंगा मैं डायरेक्टली a और डेल्टा, a प्लस डेल्टा है, बस डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि हमने ये खुद से चुने हैं ना, a और a प्लस डेल्टा है, फाइन. तो देखो अभी इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, ये साइन के एक्स प्लस के डेल्टा एक्स है, तो साइन के एक्स कॉस के डेल्टा एक्स प्लस कॉस के एक्स साइन के डेल्टा एक्स, राइट. सो दैट्स व्हाट आई विल राइट. अब मैं ये लिख नहीं रहा, राइट, I won't write it. The thing is now, we consider delta x to be small, right? Delta x is a very small portion, fine. So delta x, if delta x is small, तो cos k delta x क्या हो जाएगा? Proportional to 1 के मतलब tends to 1, right? So sin k delta x क्या हो जाएगा?
के डेल्टा एक्स हो जाएगा, बिकॉज साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज नियरली जीरो, है ना. सो दिस इज द केस. सेम वाइज आई विल राइट डायरेक्टली. यू सॉल्व दिस. ये आता है इसमें कि कॉस, सॉरी, इसमें क्या आ जाएगा, साइन के एक्स प्लस के डेल्टा एक्स कॉस के एक्स, राइट. ये आ जाएगा. इफ यू सॉल्व दिस, प्लीज सॉल्व दिस. फाइन. सो वी हैव दिस. तो ये है इंट्रोडक्टरी एक्सप्लेनेशन कैसा है. अब लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन में दिया है कि चलो ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडिनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच गैस एलिमेंट है. ये गैस एलिमेंट है टोटल. ये जो है ना एक्स और एक्स प्लस डेल्टा एक्स के बीच में एक गैस एलिमेंट है, राइट. पार्सल है, गैस पार्सल. अब मैंने एक एक पार्टिकल का मैंने दे दिया कि कैसा होगा डिस्प्लेसमेंट, राइट. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. नाउ ये कह दिया इन्होंने कि यहां पे बोला है कि क्या निकालो, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ लैम्बडा मैक्स इन द सिस्टम, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल के दिया है हमें 2 पाई बाय लैम्बडा, राइट. दैट इज वेव नंबर. फाइन. सो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द मैक्सिमम लैम्बडा पॉसिबल वेवलेंथ पॉसिबल इन दिस ट्यूब. क्या होगी वो? You may have seen the similar problems in organ pipe, right? Organ pipe में भी ऐसे टाइप के होते हैं. So how do you find? तो अभी देखो यहाँ पे, this is the displacement, right? This is the displacement. So if you see on the boundaries पे displacement क्या होगी particles की? Zero, right? Zero हो जाएगी क्योंकि there is no space to move. Fine. अब some people will say कि यहाँ पे तो space है ना move करने के लिए, right? But that's not the case. If the particle from this side moves to the extreme end, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है उस साइड, तो there is nothing, there will be a vacuum created उस एंड पे, right? So that's not possible. That's not possible. If there is a vacuum, the air pressure would crush the tube उस साइड. So we take कि यहाँ के जो particles है, they are not moving. Fine. So that's how हम क्या करेंगे इसमें, u of 0t will be 0. यहाँ के पार्टिकल्स और यहाँ के पार्टिकल जीरो डिस्प्लेसमेंट करेंगे, राइट. देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस पार्टिकल्स. सो नाउ इट विल बी जीरो, विल आल्सो बी जीरो फॉर L of t, राइट. आप समझ लेना ये इक्वेशन कर क्या रहा है बेसिकली. दिस इक्वेशन इज मेजरिंग द डिस्प्लेसमेंट, राइट. डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है वो बता रहा है बस this equation. Fine. The particle at x is displaced by how much amount? That's what it's telling. The particle at x plus delta x is displaced by how much amount? That's what this is telling. Right? आपको बस डालना है x plus delta x. Fine. तो जीरो पे कितना डिस्प्लेसमेंट है, L पे कितना डिस्प्लेसमेंट है, 0 0 है, right? Because particles can't move. तो now we'll see u of 0 of t 0 कर दे रहा है पूरा, लेकिन we'll use this. If we use this, u of LT is a sin 2 pi by lambda k, right, into L cos omega t is equal to 0. Fine. ये 0 है, ये 0 लिख देता हूँ यहाँ पे सीधा. तो if you notice, I can write 2 pi by lambda into L is equal to n pi, right? n pi. So lambda is 2L by n. Fine. अब since we need lambda max, maximum wavelength कितनी हो सकती है वो निकालना है. तो lambda max के लिए n is equal to 1, है ना? That is for sure. So lambda max would be n is equal to 1. So that is 2L. Second question is, we will assume throughout the question an oscillation mode of lambda max, right? उसी मोड में है स्टैंडिंग वेव, राइट. लैम्बडा मैक्स के मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू 2L, एक ही बस वेवलेंथ है, उसी मोड में चल रहा है सब कुछ, ऑसिलेशंस. नाउ कंसिडर नैरो पार्सल ऑफ गैस लोकेटेड रेस्ट बिटवीन x and x plus delta x. सेम सिचुएशन,
एन एक्स प्लस डेल्टा एक्स में एक पार्सल है कुछ, मतलब एक एलिमेंट है, मान लो एलिमेंट अलग है, पार्सल बोलो इसको, एलिमेंट मतलब डी एक्स बहुत छोटा, फाइन, द एलिमेंट इज फॉर द इंटीग्रेशन. As a result of the displacement wave of task A1, the partial oscillations along the x-axis undergoes a change in volume and other thermodynamic properties. Fine. So A2 question में दिया है यहाँ पे कि the partial volume v of xt oscillates around the equilibrium value of v naught is equal to s delta x. s delta x के around oscillate कर रहा है partial volume. Fine. And has the form that is the mean volume. Mean volume इसका क्या है? s delta x है. फाइन. तो क्या हो, बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, देखो ये पहले एक्सपांशन होगा, इसका एक्सपांशन होगा फिर कंप्रेशन होगा, एक्सपांशन होगा फिर कंप्रेशन होगा, दैट्स हाउ इट विल ऑसिलेट. फाइन. ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर v1 ऑफ x इन टर्म्स ऑफ v नॉट a k. सो v ऑफ xt इज गिवन एज v नॉट प्लस v1 ऑफ x cos omega t. फाइन. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड इज form of v1, expression for v1, right, in terms of v naught a k and x. Fine. So first of all मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, टोटल वॉल्यूम इसका, राइट. चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा इसका, चेंज इन वॉल्यूम. सो वी हैव v नॉट, राइट. v नॉट तो आपको पता है, फाइन, v नॉट पता है मुझे. अगर मुझे ये निकालना है तो क्या होगा, you see change in volume delta v would be s delta a, right. अगर a प्लस डेल्टा a माइनस a अगर कर दूं मैं, राइट, इसकी डिस्प्लेसमेंट a हुई है और इसकी डिस्प्लेसमेंट a प्लस डेल्टा a हुई है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, मतलब चेंज इन वॉल्यूम मतलब क्या, v फाइनल v माइनस v नॉट वुड बी s इंटू डेल्टा a, राइट. आई होप यू अंडरस्टूड this thing. Now v would be, v मतलब ये वाला v है, v नॉट प्लस s डेल्टा x, है ना. सो बेसिकली हमें निकालना है s डेल्टा x. फाइन. सो दैट्स व्हाट अभी हमें निकालना है. तो अभी कैसे निकालेंगे, अभी देखो यहाँ पे, सॉरी डेल्टा a, डेल्टा x, डेल्टा a. So I told you already, ये u of xt ये a है, राइट, और u of x प्लस डेल्टा xt ये है a प्लस डेल्टा a. फाइन. सो डेल्टा a कैसे निकालेंगे, इस दिस माइनस दिस टर्म माइनस दिस टर्म. फाइन. सो दैट्स इजी. सो व्हाट वी हैव इज v नॉट प्लस s इंटू u ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस u ऑफ xt, है ना. I hope you understood this. This is the displacement A. This is displacement A plus delta A. Fine. तो ये क्या हो जाएगा, ये v नॉट प्लस s इंटू, अभी हमें पता है ये इसका हमने निकाल रखा है पहले से ही, s इंटू a साइन के एक्स प्लस के डेल्टा एक्स कॉस के एक्स प्लस के डेल्टा एक्स कॉस के एक्स. ये a बाहर लेता हूं मैं क्योंकि a इज कॉमन. इसका हो रहा है ना, इसका ये आ रहा है माइनस ये दिस टर्म, राइट, a साइन के एक्स माइनस ये साइन के एक्स, और बाहर इसको मल्टीप्लीकेशन में है कॉस ओमेगा टी. फाइन. Fine. So v naught plus s into a, you try this on your own. ये sin के x कट जाएगा, बचेगा बस k डेल्टा x cos के x cos ओमेगा t, ये बच जाएगा, राइट. सो v नॉट प्लस, अब देखो यहाँ पे s इंटू डेल्टा एक्स क्या है, s इंटू डेल्टा एक्स इज v नॉट. फाइन. बाय द वे ये वाला a और ये डेल्टा ए डिफरेंट है, हमने ए वो कांस्टेंट दिया है इसमें क्वेश्चन में, डेल्टा ए हमने ये लिया है, इसको आप y ले सकते हो, इसको टेक इट एज y फॉर योर ओन कन्वीनियंस, ट्राई नॉट टू कंफ्यूज. दिस ए इज डिफरेंट, दिस लिख के देता हूं मैं यहाँ पे, y कर दो यहाँ पे,
y कर दो. I'm sorry for the confusion. डेल्टा y. यहाँ पे y प्लस डेल्टा y. फाइन. ये वाला ये कांस्टेंट वाला है. दिस डजंट मैटर दैट मच. अभी ये s इंटू डेल्टा एक्स हमने पास v नॉट है, राइट. v नॉट a k cos k x cos ओमेगा t. सो देखो यहाँ पे कंपेयर करके cos ओमेगा t है. v1 of x इज व्हाट? दिस इज द v1 of x. v1 of x फॉर्म है v नॉट a cos kx cos ओमेगा t. फाइन. I hope you understood.